طاہر ہم لائیو آ چکے ہیں ایکچولی whatever it is, مطلب آپ لوگوں کو طریقہ ہی نہیں ہے گیسٹ کو بلا کے آپ لوگ جو ہے وہ آپ خود مسنگ ہوتے ہیں. آپ دس از ویری انپروفیشنل. السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قسم کی خبریں ہیں، بہت زبردست قسم کی اپڈیٹس ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے تو ہم پہلے بات کریں گے. تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا پروگرام ہٹ ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے اس پروگرام میں سچی جھوٹی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنا کر کریٹ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. اسی طرح سے پی ٹی وی اس کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا. حالانکہ پی ٹی وی کی ہم تعریفیں کیا کرتے تھے کہ بڑے سلجھے ہوئے پروگرام چلا کرتے تھے، رمضان ٹرانسمیشن بڑی اچھی چلا کرتی تھی، لیکن شاید ان کو لگا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی کریں. تو انہوں نے بھی اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ایکٹریس کو بلایا جن کا نام ہے ہیرا سمرو، جن کو آپ نے ڈرامہ سیریل تیرے بن میں دیکھا تھا. وہاج کی کیا لگتی تھی تیرے بن میں ہیرا سمرو؟ ذرا آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ان کو بلایا اور وہ بیٹھی ہوئی بڑے غصے سے اور ہوسٹ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہیں، آپ بالکل ان پروفیشنل لوگ ہیں، ہمیں بلا کر آپ خود لیٹ آ رہے ہیں، اور لیٹ آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی ایکٹریس کو بلا کر ویٹ کروا رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور آپ ہی سب سے زیادہ لیٹ آ رہے ہیں. طاہر ہم لائیو آ چکے ہیں ایکچولی whatever it is, مطلب آپ لوگوں کو طریقہ ہی نہیں ہے گیسٹ کو بلا کے آپ لوگ جو ہے وہ آپ خود مسنگ ہوتے ہیں. آپ دس از ویری انپروفیشنل. کسی کو قتل کر کے وہ اپولوجائز کر لیں. مجھے تو لگتا ہے معافی بنی کیوں ہے، مطلب آپ کسی کو تماچا مار کے بول دیں I'm really sorry. مطلب ٹائم از منی، یو ویسٹڈ مائی منی. کچھ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ سب کہیں گے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے. تو اب وہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے، کیونکہ اسکرپٹڈ چیز میں بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. کیونکہ لائیو جب پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر لڑائی نہیں چلتی، لڑائی پیچھے ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے پتہ چلے کہ ہیرا جو ہیں وہ بہت غصے میں آئیں. بہت واضح کلیئر ہو رہا تھا یہ اسکرپٹڈ ہے. اور آپ لوگوں نے اگر وہ پروگرام دیکھا ہے تو آپ کو لگا ہوگا کہ وائرل ہو گیا بھائی، اس پہ سمیر چودھری بھی بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہو رہا ہے. رمضان ٹرانسمیشن یعنی کہ یہاں پر ہمیں بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں سب جھوٹ اور فریب سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. آخر کیوں؟ اسی طرح سے ایک اور پروگرام میں سعدیہ امام کی بیٹی پر بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی. اب سعدیہ امام کی بیٹی جب اس پروگرام میں آئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ماما سے مانگتی ہیں یا پاپا سے مانگتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بھی مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو میں اللہ سے مانگتی ہوں، نہ میں ماما سے مانگتی ہوں نہ میں پاپا سے مانگتی ہوں. کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ماما سے کرتی ہیں یا بابا سے؟ اللہ میں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی تربیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے تو انہوں نے کہا بی بی فاطمہ. آپ کے رول ماڈل کون ہے؟ بی بی فاطمہ. ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں دونوں چیزوں پر میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آج اصل میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ انہوں نے نعت پڑھنی تھی. ماما نے بتایا کہ جو ہے آپ نے آج نعت پڑھنی تھی، اس وجہ سے روزہ بھی جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھا. عمر ان کی 12 سے 13 سال تھی. اب آپ سوچیں 12-13 سال کی عمر میں اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو چلیں آپ مینشن نہ کریں، لیکن نعت پڑھنے کے لیے آپ فرض روزہ چھوڑ دیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اور اسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے لوگوں نے تنقید کی سعدیہ امام کی بیٹی پر بھی، سعدیہ امام پر بھی، اور اس پروگرام کے ہوسٹ پر بھی کہ آپ کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے باقی ساری اچھی باتیں کی، سکھائیں، لیکن آپ نے فرض روزے کے لیے نعت کے لیے فرض روزہ چھڑوا دیا کہ آج آپ نے پروگرام میں نعت پڑھنی ہے تو آج آپ روزہ نہ رکھیں. دیکھیں یار، وہ بچے بھی ہیں جن کے گھر میں سوکھی روکھی ملتی ہے اور وہ روزے رکھتے ہیں بہت چھوٹی عمر سے، اور مجھے دیکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت غربت میں، میں بھی الحمدللہ بہت اچھا کھایا، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس یہ فیسلٹیز کہاں تھی یار جو ان ایکٹریس اور بڑے بڑے سٹارز کے بچوں کے پاس ہیں. ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹی عمر سے روزے رکھتے آئے ہیں. لیکن جب ان پر تنقید ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار
दो इतनी अच्छी बातें करवाई, चाहे वो सिखाई भी थी कि ये सवाल आप कीजिएगा, इसका ये जवाब देंगी, तो ठीक है, अच्छी बात है, सिखा कर ही लेके जाना पड़ता है बच्चों को। लेकिन उसके साथ ये चीज़ जो कि नात पढ़ने के लिए रोज़ा छोड़ दिया गया, ये समझ से बाहर थी। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा अपना कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से दानिश तैमूर और राबिया आनम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी और उन्होंने, दानिश तैमूर ने राबिया को बुलाते हुए राबिया कहने के बजाय आमना कह दिया। अब देखिए किस तरह से इन लोगों के दिमाग चलते हैं कि दूसरे से ज़रा हट कर कंट्रोवर्सी बनाई जाए। तो क्या किया, दानिश ने राबिया कहने के बजाय आमना कह दिया। तो राबिया आनम ने इस बात को बहुत हाईलाइट किया कि दानिश मुझे ये बताओ कि ये आमना कौन है। नहीं, बाकी बातों की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये आमना कौन है। अब तो आयजा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अब तो तुम घर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये आमना मैंने नाम लिया क्यों था। आमना कैसी हैं आप? क्या आपने मुझे आमना कहा? अब ये तो आयजा पूछेगी आमना कौन है? क्यों आमना निकला? आमना हमारे सेट पर कोई होंगी। एक तो ये कि ये तो जानबूझ के होता है। देखें नाम, अब जाहिर है बिहाइंड द सीन कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है, कोई कुलीग हो सकती है, किसी से अभी बात हुई हो तो अचानक से, या फिर कोई एक्ट्रेस दिमाग में आ गई, उसका नाम आपने ले लिया, लेकिन सामने राबिया बैठी थी। लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, ये भी जानबूझकर किया गया कि ताकि पता चल सके यार कि हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा हुआ, दानिश के साथ किसी आमना नामी लड़की का कोई चक्कर चल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर लोगों को झूठ और फ्रॉड और ये सारी चीज़ें, जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था, जवेरिया सऊद ने अपने मेन वीडियो में, मैंने आपको बताया था मेन चैनल की वीडियो में, कि जवेरिया सऊद के प्रोग्राम में एक लड़की कॉल करती है और कहती है कि मुझे ना मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, तो मुझे भी होनी चाहिए थी, मैं एक औरत हूँ, मुझे क्यों नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आलिम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे हल बताएं, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। अब देखिए कौन औरत इस तरह के सवालात करती है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं। एक पाकिस्तानी लड़की का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी शादी पर बहुत खुलकर डांस कर रही हैं और गाना है मगरूला। इस गाने पर उन्होंने बहुत ज्यादा डांस किया, बहुत खुलकर, मतलब ऐसे जैसे वो जश्न मना रही हैं। नाम है इनका अजीमा। उन्होंने कहा कि मेरी डाइवोर्स हो गई है तो मैं बहुत खुश हूं, मैं सेलिब्रेट कर रही हूं कि मेरी जान छूट गई, मैंने उसे मगरूला दिया। भाई अब इस बात पर पहले तो मैं आपको बताऊं उसके 3 बच्चे भी हैं और उन्होंने कहा 3 बच्चों के साथ मैं आजाद हो गई हूं, अब मुझे यूं लगता है कि मेरी जिंदगी पुरसुकून हो गई है। इनकी इन बातों पर कुछ लोगों ने तो उनको अप्रिशिएट किया कि चलो तुम्हारी जान छूट गई, अब तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजारोगी, ना किसी के कहने पर उठना पड़ेगा, ना किसी के कहने पर सोना पड़ेगा, ना तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ना तुम्हें उसकी कोई बात माननी पड़ेगी। कुछ लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे को गंदा कर रही हो, मुआशरे पे बुरे असरात आएंगे, बुरी चीज़ों को आप प्रमोट कर रही हैं। अगर आपने डाइवोर्स ले लिया बस ठीक है, खामोश हो जाए, लेकिन अपने साथ और लड़कियों को तो खराब ना करें। बहुत सारे लोग, मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से तंग होते हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ से तंग होती हैं कि यार मैं अपने शोहर के लिए काम करूं, अपने शोहर को खाना दूं, उसके कपड़े इस्त्री करूं। अब वो इसको क्या समझती हैं, मेरा कहाँ फ़र्ज़ है यार, मैंने जॉब पे जाना है। अब जॉब पे जाती हैं, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ उसको 30,000 40,000 लाख रुपया दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वो उसे क्या कहता है, तुमने अभी तक मेरी टेबल पे मेरी चाय की नहीं पहुंची। वो डांट रहा है, वो उसकी सारी बातें मान रही है। ठीक है, गाड़ी तैयार कराओ सर की, फलां कराओ, सब निकलने वाले हैं, फलां करने वाले हैं, सेक्रेटरी है जी भाई, सारे काम कर रही है, हंसी खुशी कर रही है, लेकिन शोहर के नहीं कर रही। जो शोहर 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए उस पर खर्च कर रहा है, कह रही है उसके अपने काम है, वो खुद करे। एक तरफ शोहर जो सब कुछ खर्च कर रहा है, उसकी बात मानते वो समझती है कि ये मेरा हक नहीं है, मैं गुलाम नहीं हूं। दूसरी तरफ किसी से लाख रुपया ले रही है, उसकी सारी बातें मान रही है। देखिए मैं एक ही बात कहता हूं, अगर शोहर आपका ऐसा नहीं है ना जो आपको मार कर फना कर दे, अगर ऐसा शोहर नहीं है, गुस्सा है नॉर्मल हर इंसान, देखें आप एक को छोड़कर दूसरी की तरफ जाती हैं तो हो सकता है वो उससे ज्यादा गुस्से वाला हो, उससे ज्यादा क्या बुरा इंसान हो, लेकिन आप उसको छोड़ने पर बज़िद हैं, बस इसको छोड़ना है। देखें अगर वो ऐसा शख्स नहीं है, आपका ख्याल भी रखता है, आपसे प्यार भी करता है,
कभी कभी गुस्सा भी करता है, तो आप भी तो गुस्सा कर लेती हैं, आप भी तो किसी बात पर एतराज कर लेती हैं, आपको भी तो बुरा लग जाता है, वो भी बर्दाश्त करता है, तो फिर रिश्ते क्यों तोड़ते हो? फिर भी तो करनी है ना, आगे जाकर किसी और से भी तो करनी है। अगर वो सारी जिंदगी ताने देता रहे आपको, तुम्हारी तो दूसरी शादी है, तुम्हारे अंदर था क्या? ये तो शुक्र करो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, वरना तुम्हें तो तुम्हारे पहले शोहर ने नहीं रखा। वो चीजें आप बर्दाश्त कर लेंगे क्यों? वो मालदार है। बहरहाल हो सकता है कि मेरे इस छोटे से मैसेज से आपको बात समझ आ गई हो। अगर शोहर अच्छा बुरा मिक्स है तो यार जिंदगी गुजारो, हो सकता है अगला इससे ज्यादा बुरा निकले। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ जी, और बात करते हैं, मैंने लिख के रखी हुई है हीरा मानी के बारे में। तो हीरा मानी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट फरीदू को इंटरव्यू देते हुए बार बार कहा कि मैं पाकिस्तानी करीना कपूर हूँ। लोग ये समझते हैं कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं असल में करीना कपूर जैसी ही हूँ, और मैं ना तो ओवर एक्टिंग करती हूँ, मेरी जिंदगी हकीकत में ऐसी है। और हीरा मानी ने यह भी कहा कि करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट में जो गीत का किरदार है वो मेरी असल जिंदगी से मिलता जुलता है, मतलब जिस तरह से मेरी असल जिंदगी है वो किरदार बिल्कुल वैसा ही है, गीत का किरदार। यार इतना ज्यादा क्यों है? अब इन पर तनकीद इसलिए ज्यादा की जा रही है, और बहुत सारे और एक्टर्स का भी नाम ले लेकर तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तानी एक्टर्स अपने आप को इंडियंस के साथ क्यों कंपेयर करते हैं, इनकी एक अपनी पहचान है। आपने देखा होगा बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को ये बात समझाते हैं, वो कहते हैं ना कि मैं रोनाल्डो, मैं फलां हूँ, रोनाल्डो ऐसा है, ये मेरा बेटा रोनाल्डो की तरह है। कोई ऐसी बात करता है ना तो बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि ये मत कहा करो कि मेरा बेटा रोनाल्डो से मिलता है। अपने बेटे को ये सिखाओ कि उसकी अपनी एक पहचान है, वो अब्दुल्ला है, वो कासिम है, मतलब उसको ये सिखाओ, ये बताओ कि तुम्हारी एक अपनी पहचान है भाई, तुम अपनी पहचान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मतलब उसको ये क्यों सिखाते हो कि तुम जो है ना रोनाल्डो की तरह हो, तुम जो हो वो शाहरुख खान की तरह हो, तुम फलां की तरह हो। तो इसी तरह से हमारे एक्टर्स पर इसलिए तनकीद की जाती है कि अपने सारे प्रोग्राम्स में, जिस तरह से आप देखें ना, माहिरा खान जहाँ बैठती हैं वो शाहरुख खान के गीत गाती हैं, हुमायूमा मलिक जहाँ पर बैठती हैं वो इम्मी करती हैं, यानी कि इमरान हाशमी की तारीफ़ें करती रहती हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन तारीफ़ें वो इम्मी की करती रहती हैं। सबा कमर को देखें तो वो इरफान खान की तारीफ़ें करती रहती हैं, उनके बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में, उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में, और इन सारी चीज़ों के बारे में वो तारीफ़ें करती रहती हैं। अल्लाह ताला खैर इरफान खान को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। तो लोग इसलिए जो है वो करते हैं तनकीद कि हमारे जितने भी एक्टर्स हैं ये इस तरह के काम क्यों करते हैं, मतलब अपनी भी पहचान, अपने बारे में बात करें, उनको इंटरव्यू देते हुए कहें कि मैं पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकारा हूँ, मैंने फलां ड्रामे में काम किया है और मेरे ड्रामे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, फलां सुपरस्टार मेरे ड्रामे को पसंद करता है। ये बात करनी चाहिए। ये क्या बात करें, मैं करीना कपूर हूँ, पाकिस्तान की करीना कपूर हूँ। खैर उनकी मोहब्बत है, कह सकते हैं। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है, ये ठीक है या नहीं है? बहरहाल आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तनकीद की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं। सना जावेद ने फिर अपने शोहर शुएब मलिक के साथ तस्वीर लगाई, बहुत प्यार मोहब्बत वाली, बहुत हेट मिला कि तुम्हारी अपनी मोहब्बत है तो अपने पास रखो। इस तरह की क्लोज तस्वीरें रमजान में लगा कर लोगों को दिखाकर आखिर किसको जेलस करवाना चाहते हो, किसको बताना चाहते हो कि ये तुम्हारी मोहब्बत है शुएब मलिक, ये तुम्हारी असल मोहब्बत है? क्या किसको शो करना चाह रही हैं आप? इस तरह की चीज़ें जब सामने आई तो फिर लोग दोनों सानिया मिर्ज़ा और उमैर जसवाल के ताने देने लग गए कि असल में ये दोनों जो है, एक तो सानिया मिर्ज़ा, अच्छा देखिए मैं एक बात बताऊँ, दोनों जो हैं वो सानिया मिर्ज़ा और जयसवाल को, उमैर जसवाल को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मज़े की बात सुने, मज़े की बात ये है कि उमैर जसवाल ने भी कभी भी सना जावेद को ना तो कुछ दिखाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ जो मैं सानिया मिर्ज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ, सानिया मिर्ज़ा ने एक बार भी शुएब मलिक के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं लगाई, कोई बात नहीं की। यार देखो कितनी ज़बरदस्त बात है। देखें जब उन्होंने ये शादी की थी ना तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये बहुत गलत हुआ। पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम इंडिया से भाभी ले आए हैं, हम इंडिया से एक सुपरस्टार को ले आए हैं। वो खैर पाकिस्तान में तो रही नहीं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में ये बहुत जश्न मनाया गया था कि इंडिया से भाभी ले आए हैं हम। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद
ये इतना वक्त गुजरा, सब कुछ शोएब मलिक की तरफ से आई होंगी बातें, लेकिन सानिया मिर्ज़ा की तरफ से कभी कोई बात नहीं आई कि शोएब मलिक ने मेरे साथ ये किया, शोएब मलिक ये था, शोएब मलिक वो था, ऐसा। हालांकि शोएब मलिक के बारे में सभी जानते हैं कि थोड़ा दिल फेंग किस्म के आदमी है, आशिक मिजाज आदमी है, क्योंकि इनका पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हर बंदी के साथ बहुत ज़्यादा मजाक था। जुगन काजिम के साथ, कैसा जुगन काजिम के साथ इनका जो मजाक है, अगर मुझे वो वीडियो मिला तो मैं लगाऊंगा, आप देखें यार। उसके बाद शाइस्ता लोधी के साथ, जिस तरह से आप देखेंगे जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं शोएब मलिक के साथ, उनका बहुत मजाक है, बहुत शुगल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि यार शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को भी इसी तरह से जो है प्यार और मोहब्बत के, नहीं जाल तो नहीं कहेंगे, हो सकता है उस वक्त इनको भी मोहब्बत हो, क्योंकि एक बार सानिया मिर्ज़ा नाराज़ हो गई थी तो ये वर्ल्ड कप छोड़कर इंडिया पहुंच गए थे उनको राज़ी करने के लिए। तो मोहब्बत तो होगी, लेकिन इतनी दूरी रहने के बावजूद देखें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने शोहरों को बाहर भेज देती हैं, कहती हैं कि बाहर रहेगा तो कोई इसका कैरियर बन जाएगा, फलां हो जाएगा। वो दूरियाँ जो होती हैं ना, वो मोहब्बत ख़त्म कर देती हैं। मुझे यूँ लगता है कि दूरी नहीं होनी चाहिए मियाँ बीवी में, मियाँ बीवी को साथ रहना चाहिए। कभी अगर कोई बाहर जाता है मजबूरन भी, तो फिर भी एक दूसरे को मिलने का कोई ना कोई मौका ढूंढना चाहिए। बहरहाल की कहना सी बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।